ଜାଣୁଛି ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛି ଟପିକ୍ସ on relation function that is first topic of your books तो relation chapter तो what is relation so you can write the definition a relation from relation R what is a relation R from a non-empty set A to non-empty set B if R subset equal to A cross B and Cartesian product. So A and B are two non-empty set. Then the relation R whenever R subset equal to A cross B. Do you know about the Cartesian product A cross B? 11th class में तुम पढ़िছো मैं एग्जाम पुणी थरे आतरे रिकॉल करी सपोज A is equal to 1 2 and B is equal to 2 3 then what is A cross B that is equal to 1 2 1 3 2 2 2 3 मन पड़ुछि तो आमे रिलेशन ताले कोन बर्तन बुझिया पई हम गोटे बहुत बढ़िया एग्जांपल नोजी तो क्लियर हे जिवो सपोज ए सेट होची राजा दशरथ यू नो दशरथ फॉर डी फॉर दशरथ एंड बी सेट नेली एलिमेंट तांको पुआ नाम सेट राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एंड सीता आल्सो मुनेली तार बहु सीता तो बर्तमान ए क्रॉस बी व्हाट विल बी तो dr नवा dl नवा db नवा ds नवा एंड d सीता नवा जदि आर गोटे रिलेशन हबो रिलेशन बिटवीन sonhood that is sonhood relation so what will be relation it will be only Dashrath Ram Dashrath Lakshman Dashrath Bharat and Dashrath Shatrughan so Sita Dashrath Sita ଆସିବ ନା so in this case the R is subset of A cross B सब एलिमेंट एथिरे अछि dr अछि dl अछि ds अछि कि d सीता नहीं हेले भी ये सबसेट तो फर्स्ट जो डेफिनेशन थिला d सबसेट b सपोज हमें गोटे नबा एटा r1 नबा दी r2 गोटे रिलेशन नबा द रिलेशन बिटवीन द डॉटर इन लॉ तो इथे कोन आसीबो d सीता आल्सो सबसेट ऑफ a क्रॉस b जदि हमें आउटे रिलेशन नबा रिलेशन r3 द फैमिली मेंबर तले इथे सब आसीबो दशरथ राज dr आसीबो dl आसीबो db आसीबो ds आसीबो d सीता आल्सो तो एई क्षेत्र कोन होला इक्वल हो गेला तले डेफिनेशन आसिला r सबसेट इक्वल टू a क्रॉस b तो वर्तमान देखिबा आमे लेखिबा केमती गोटे रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन केमती करबा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन तले if a b belongs to a cross b then the relation can be written as ab belongs to r that is we can write also a related to b that is r for relation a related to b or ab belongs to r लिखिबा तो मु आउ थरे अगेन रिकॉल करछि 11th क्लास नॉलेज तो अगेन मु 11th क्लास नॉलेज रिकॉल करछि दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन इन एम्प्टी रिलेशन और void रिलेशन empty relation that is phi the phi subset equal to a cross b there is no element
on this relation, that is phi. So phi subset equal to A cross B. For example, I'll take here age relation. So 1, 2, 3, 4. So are given AB such that A difference B greater than 10. So let us say A B ro difference ta suppose 1 2 naba but 2 1 1 2 difference kata hochi -1 2 1 nele kata hi paribo se bi hi paribo ame -1 as paribo जदि हाईएस्ट नंबर 4 1 नबा 4 -1 केता से 3 आसीबो त केबे भी यार वैल्यू 0 थारु 10 थारु बेसी हेई परिबो नाही तले एडा होची फाई रिलेशन ओके सो इट इज एम्प्टी रिलेशन देन universal relation what is universal relation in this case A cross B subset equal to also A cross B, the relation in which A cross B is subset equal to A cross B. Total relation satisfy करिवो. For example, मैं same example ना नौची A set नेली यदि R is equal to लिखिवी A B such that A difference B modulus कहीं ना negative असले भी modulus में positive है always greater than 0 सब लोग positive number आसी जहाँ भी नंबर दियो देखो 1 -2 that is -1 modulus 1 always positive आसीबो तले सबुडी को ये satisfy करियो तले एडी A cross B subset equal to A cross B that is the universal relation then identity relation एडा रिलेशन को सपोज मु कर लिखबी IA तो A or A belongs to A and that is A टोटल निज निज भीतर रिलेशन सपोज में क्षेत्र में कहबी यदि R क्षेत्र में नबा आइडेंटिटी 1 1 2 2 3 3 4 4 that is the identity relation A 1 1 2 2 3 3 4 4 denoted by IA again वर्तमान मु 12 क्लास टॉपिक सूची को टाइप्स ऑफ रिलेशन रे जोटा कि हमें वर्तमान प्रूव करिया ता बेसिस रे बहुत इंपोर्टेंट अछि सेडा वर्तमान देखिबा तो टाइप्स ऑफ रिलेशन बेसिस ऑन 12 क्लास दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन that is relation between itself so a relation from a non-empty set A to non-empty set B said to be reflexive whenever if A related to A that is AA belongs to R यदि मु लास्ट एग्जांपल फॉलो करिवि A is equal to थिला 1 2 3 4 ताले ए क्षेत्र रे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोन हो ताले 1 1 2 2 3 3 4 4 दैट इज रिफ्लेक्सिव तो क्वेश्चन आछि ताले रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन तफात कोन होला समान ताले ना केबे हेले समान नै मु गोटे रिलेशन ने भी R1 1 1 2 2 3 3 4 4 and 4 1 suppose so it is reflexive why it contains 1 1 2 2 3 3 4 4 but it is not identity why they are present 4 1 so every identity is reflexive but every reflexive is not a identity relation clear la बर्तमान आउडे R2 डे नबा सपोज is 1 1 2 2 3 3 is it reflexive no why because 4 4 does not belongs to R so it is not reflexive तापर देखिए सिमेट्रिक रिलेशन एटा कोन the relation said to be symmetric a relation
said to be symmetric if A related to B, that implies B related to A. For example, AB belongs to R, that implies BA belongs to R. Given AB belongs to R, we have to prove that BA belongs to R. So this is the reflexive relation. तो गोटे एग्जांपल बुझिया पाई मु कहूची गोटे एग्जांपल सपोज राम फ्रेंड ऑफ हरि अल्टीमेट हरि आल्सो फ्रेंड ऑफ राम तले एटा होची जदि हमें प्रूव करि पाले हरि मध्य राम फ्रेंड ताले हला रिफ्लेक्स सिमेट्रिक तो एटा आउट एग्जांपल मु क्लियर करूची सपोज सही एग्जांपल मुडा नेबी जदि तो r1 एक रिलेशन नेली एडी हबो 1 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1 and 1 2 ताले एटा कोन ए रिलेशन बोथ रिफ्लेक्सिव काहे ना 1 1 2 2 3 3 4 4 अछि एंड 2 1 अछि तार अपोजिट 1 2 अछि मत 2 1 a to b b to a तो 2 1 on 1 2 जेहेतु अछि एटा होला सिमेट्रिक तार दिस रिलेशन इज बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक अदर सपोज मु कहबी जदि गोटे अनदर रिलेशन ने आर ए बी सच दैट A perpendicular where AB the any lines belongs to set L, that is number of lines. तो A गोटे लाइन अछि B गोटे लाइन अछि L रे belongs करूछि समाने तो A perpendicular B यदि कहबी ताले कोन होला AB कोन AB are the two lines on set L तो A perpendicular B ताले ए क्षेत्र कोन हबो सिमेट्रिक हबो ना नहीं ताले A perpendicular B दीटा लाइन अछि ना नहीं A एटा होची B ताले A perpendicular B and B also perpendicular A जदि B ऊपर perpendicular B मधो A ऊपर perpendicular ताले एटा कोन होला that is symmetric. Then transitive relation कोन ना A जदि रिलेटेड हबो B जदि रिलेटेड हबो C ताले A रिलेटेड C हबो that is called to a relation said to be transitive if A related to B and B related to C, that implies A related to C. That is AB belongs to R and BC belongs to R, that implies AC belongs to R. To explain it, I consider Ram, Hari, Jodu तीन जन सांग थिले तारा राम हरि रो फ्रेंड हरि जोदु रो फ्रेंड अल्टीमेट राम आल्सो जोदु रो फ्रेंड क्लियर हला ना तो A रिलेटेड टू B देथिबो B रिलेटेड टू C देथिबो ताले A रिलेटेड टू C मध्ये हबो ए केतरे गोटे एग्जांपल मु लेखुची सपोज R in this case on the set also 1 2 3 4 so 2 3 3 4 that is called what A to B B to C ताने जो दरकार को 2 to 4 that is equal to if given 2 4 it is transitive मानो तो कोई नेक्स्ट लिखुची गोटे पहले देखि 1 3 3 4 तो व्हाट इज रिलेशन obviously it will be 1 4 then it will be transitive clear हला बर्तमान ये ट्रांजिटिव रिलेशन गला तो बर्तमान केते एक्सेप्शनल केस क्षेत्र रे जदी नेक्स्ट पेयर देई नथिबो सपोज मु गोटे लिखुची आंसर एडी गोटे आर देछि गोटे क्वेश्चन ओनली देछि 1 1 2 2 3 3 4 4 4 okay and एटा न लिखिबे तो सिंपली खाली लिखि दवा एटा के बुझियो कोन कष्ट हो देखा सपोज दिस खाली 1 3 के डेट मार देछि 1 3 देछि
ताले केतरे कोन नेक्स्ट पेयर हम पाखरे नाही जेहेतु 1 3 अछि 3 समथिंग रहया कथा तो एटी जेहेतु नाही ताले गुटिए ही पेयर अछि ताले एटा ट्रांजिटिव कंडीशन मध्ये सैटिस्फाई करिवो एटा मन रखियो एटा वेरी इंपोर्टेंट 1 3 गुटे पेयर अछि नेक्स्ट पेयर तार नाही तापर थर्ड पेयर को हम टेस्ट करियार थिला ना किंतु हम दुईटा पेयर गुटे पेयर मात्र देइछि ताले एटी क्षेत्र रे ये ट्रांजिटिव ए क्षेत्र रे एक्सेप्शनल केस हबो तापर अछि इक्विवेलेंस रिलेशन जोटा कि प्रूव करिया तो पड़ी इक्विवेलेंस रिलेशन तो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन ए रिलेशन सेट टू बी इक्विवेलेंस a relation said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. ये तीनटा को जदि सैटिस्फाई करिवो ताहले सेटा गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन हबो अदरवाइज नॉट गुटे भी कंडीशन जदि ये सैटिस्फाई न करिवो ताले एटा इक्विवेलेंस रिलेशन हबो ना हम वर्तमान एक्सरसाइज रे 2 नंबर क्वेश्चन करिवा जेति क्वेश्चन दे जेति राइट द फॉलोइंग रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म एंड डिटरमाइन देयर टाइप्स टाइप माने एटा वेदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कोटा हबोनी हम टेस्ट करिया वर्तमान आगे लिखिया टेबुलर फॉर्म लिखिया अछि कंडीशन xy such that 2x - y = 0 ऑन कोटा a सेट रही 1 2 3 अप टू 13 हितरे एलिमेंट्स अछि तो कंडीशन 2x minus y equal to 0 that is equal to y is equal to 2x ने x जहां हो y तार द्विगुण हो तो रिलेशन कोन हो सपोज x जति 1 नेली तार द्विगुण केते हो 2 हो 2 नेले केते 4 3 नेले केते हो 6 4 नेले 8 5 नेले 10 6 नेले 12 आउ बेसी होबो नाही काई 7 जति नबा 14 ही जो तो मोर एलिमेंट अछि 13 बदल तो ए रिलेशन आसला मैं बर्तन टेस्ट कर whether it is reflexive ना रिफ्लेक्सिव होबो कि केबे क्वेश्चन करा होबो काई कहबो ना हमें जेतु 1 1 नाही 1 1 1 1 2 2 3 3 up to 6 6 point नाही does not belongs to r so it is not reflexive symmetric कैसे देखो 1 2 अछि 2 1 अछि कि 2 4 अछि 4 2 अछि कि 3 6 अछि 6 3 अछि कि तो किछि नाही तो हम गुटे भी धरनबा लेट 1 2 belongs to r but 2 1 does not belongs to r so it is not symmetric then transitive क्षेत्र तो लिखो 1 2 belongs to r अछि 1 2 belongs to r अछि फर्स्ट पेयर and 2 4 belongs to r अछि 1 2 belongs to r and a to b b to c अछि किंतु a to c अछि कि माने 1 to 6 1 to 4 अछि कि हमें 1 to 4 नाही but 1 4 does not belongs to r so it is not transitive first question क्लियर है सेकंड बिट दे छी हमें r such that xy तो x divides y x divides y that is y is multiple of x y is multiple of x तले तो हमें कोन करि पाइबा तले ए क्षेत्र रिलेशन कोन नै परिबा देखो a केते नै है छी a is equal to 1 2 3 4 5 6 a is equal to 1 2 up to 6 अछि तो रिलेशन कोन हो ना 1 1 तो ये माने कोन होची x divides y माने y होची x रो मल्टीपल तने 1 1 रो मल्टीपल हे परिबो 2 2 रही परिबो 3 3 रही परिबो 4 4 5 5 6 6 6 तब लिखिया 1 2 1 3 यार मल्टीपल हे परिबो 1 4 1 5 1 6 तब लिखिया ना 2 4 हे परिबो 2 6 भी हे परिबो मल्टीपल तो देन 3 नबा दी 3 6 नहीं हे परिबो आउ हे परिबो तो एई क्षेत्र रे देखो रिफ्लेक्सिव कथा कंसीडर करिया इज इट रिफ्लेक्सिव यस काहे कि ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हम लिखे रिफ्लेक्सिव हेडिंग लिखवा
as 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to R, so it is reflexive. Clear? Then symmetric कैसे देखिए आप, तो सपोज 1 4 belongs to R, तो 4 1 does not belongs to R, 1 4 belongs to R, but 4 1 does not belongs to R, so it is symmetric. Transitive कैसे देखा, सपोज 1 4 belongs to R and 4 9, ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିବା, suppose 1 3 belongs to R, the 1 3 belongs to R transitive, and 3 6 belongs to R, 3 6 belongs to R, 1 6 also belongs to R. बना नहीं, ए 1 2 3 देइछि, 3 to 6 मते देइछि, ताला प्रूव करे देखार अछि 1 to 6 अछि ना, 1 to 6 1 to 6 1 to 6 अछि, तो एटा होछि मतलब कोन ट्रांजिटिव. क्वेश्चन नंबर 3 टा तमे करियो, 4 टा मु करूछि वर्तमान देछि, r is equal to xy such that y less than equal to x less than equal to 4 on the set 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 5 set a रे अछि एलिमेंट्स, एतरे x y डी कंडीशन होबो कोन ना, y लेस देन तरी x ग्रेटर देन इक्वल टू y, s ता सब बळे y ठारु बड़ होबो बा समान ही पारे, एवं x ता लेस देन 4 ही परिबो, तो x रे वैल्यू कमाले 5 माने 4 बा 4 रु सान होबो, आउ x y वैल्यू सब बळे x सहित समान होबार बा ताठर कम होबो, ताले हमें सब बळे जे समान क्षेत्र ने 1 1 2 2 3 3 4 4 पर्यंत नहीं परिबा, काइना हाईएस्ट वैल्यू x रो 4 ही परिबो. तो नेक्स्ट होची जदी x बड़ा नवा सब पड़े तो 2 1 ही परियो, 2 2 ही परियो, तो 2 1 2 2 नेले, तो ये एलिमेंट गोटे आसे 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 4 4 ये कंडीशन सैटिस्फाई करछि. बर्तन रिफ्लेक्सिव क्षेत्र नबा, तो रिफ्लेक्सिव क्षेत्र रे कोन अछि 1 1 अछि 1 1 2 2 3 3 4 4 बछि, बट 5 5 does not belongs to R, so as 5 5 does not belongs to R, so it is not reflexive. Clear ना? तो सिमेट्रिक केस कथा नवा जदी सिमेट्रिक केस के कोन अछि ना 2 1 थिला बळे सब बळे तो x बड़ रहिबो, 2 1 थिला बळे 1 2 अछि कि नहीं, तो 2 1 belongs to R but 1 2 does not belongs to R. आ गोटे किसी धरी नहीं पाया, तरा 3 1 नेलो 1 3 नहीं, कोनटा भी धरिया 4 1 नेबा जदी 1 4 नहीं, तो ट्रांजिटिव केस रे धरा जाउ नेबे आमे जदी नबा सपोज 2 3 2 3 2 and 2 1, तो 3 2 3 2 2 1 3 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, that is equal to 3 1 also belongs to R, so it is transitive. Clear? मैं थर्ड क्वेश्चन दे दिनबा फर्स्ट विच कोन अछि, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑन द सेट आर mn such that m minus n greater than equal to 7 on z. तले इंटीजर इना पूर्ण संख्या में कहछु, पूर्ण संख्या रे mn such that m minus n greater than equal to 7 हो, डिफरेंस ता सब 7 बा 7 ठार बड़ होर अछि, त रिफ्लेक्सिव क्षेत्र में कोन करिया, रिफ्लेक्सिव लेट m belongs to जनरल, तले m minus m is equal to कोन 0 होइछि, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 7 बा 7 केबे हेले समान हेई परिबानी बा ताटो बड़ हेई परिबानी 0, तो दैट इज कोन ना m does not belongs to R, so it is not reflexive. Clear? तो सिमेट्रिक कथा हम कंसीडर करिवा,
सिमेट्रिक एक तरह कौन हम ना ए टू बी देन बी टू सी देखिबार अछि तो गिवन व्हाट इज गिवन एम एन बिलोंग्स टू सपोज आर जदि नबा रिलेशन नबा ताले हम कोन लिखि परिया एम माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ताले एम जदि हम ऑपोजिट कर दा माइनस कॉमन आइबा तो कोन माइनस अब एन माइनस एम लेस देन इक्वल टू 7 पे दिबे जे माइनस कॉमन रिलेटेड कोन हो ताले तबरे माइनस जदि कॉमन नबा दी पटे और एन माइनस एके यदि तुम कंफ्यूज लागुची so in this case n minus m के वैल्यू ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हबन तो एई क्षेत्र कोन हला ताले nm does not belongs to r so it is not symmetric transitive क्षेत्र तो कथा देखिया जदि कोन हला ना ट्रांजिटिव कोन अछि ना लेट तीनटा टर्म नबा m n p belongs to z नेले ताले हमर कंडीशन कोन अछि ना m n belongs to r and n p belongs to r तो फर्स्ट कंडीशन कौन लिखे रे m minus n greater than equal to 7 फर्स्ट कंडीशन एडी लिखे n minus p greater than equal to 7 ताले एई क्षेत्र कोन होची इटा ऐड करिया ऐड 1 and 2 ऐड करले परे कोन हबो m minus n minus p greater than equal to 7 plus 7 that is what will n cancel তাহলে m minus p greater than equal to 14 তাহলে 7 টা তো বড় আছে না তো স্যাটিসফাই করুছি m p greater than equal to তাহলে 7 আছে না 7 that is it is satisfied so it is transitive clear হলো না 14 মানে greater than 7 also so बर्तमान हमें फोर्थ बिट नबा मजे यदि स्किप करूची सेला करिया को चेष्टा करियो तो r is equal to mn m by n is power of 5 where m belongs to z minus 0 माने सब माने इंटीजर हबो केवल 0 छाडी ताले प्रॉपर रिफ्लेक्सिव करिया रिफ्लेक्सिव केते कोन ताले निज निज भीतर हबो ताले लेट m belongs to z minus 0 हमें जनबा ताले हमें कोन लिखि परिया ना m by n तो एडी केते कोन m by m we know m by b equal to what is 1 ताले हमें कोन करिया रे 5 to the power 0 लिखि परिया तो रिपेंड पावर ऑफ 5 हला ना नहीं so mm belongs to r it is reflexive असल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्षेत्र ले गया सिमेट्रिक तो गिवन m n belongs to z minus 0 तो mn belongs to r that implies m by n is equal to suppose 5 to the power k तो हमें n by m लिखिबा 5 to the power minus k है पावर नेगेटिव है ताले एटा मतलब 5 रो पावर हला ना सो दैट इज इक्वल टू nm belongs to r a to b b to a हला तार इट इज सिमेट्रिक नेक्स्ट है ट्रांजिटिव केस रे हमें दिनबा ट्रांजिटिव केस कथा कंसीडर करिया ताले कोन होची ना आगुटे नबा m n p नेबा let m n p belongs to z minus 0 so given what is m n belongs to r and n p belongs to r so we can write now m by n is equal to 5 to the power suppose k1 and n by p is equal to also 5 to the power k2 नियम तो मल्टीप्लाई करला परे कोन होबो ताले m by n into n by p is equal to 5 to the power k1 into 5 to the power k2
एन कैंसल ताले कोन हला m by p is equal to 5 to the power k1 plus k2 ताले पावर हला so it is so mp belongs to r so it is transitive. Next question fifth bit is mn where such that mn is divisible by 2 mn is divisible by 2 ए केस रे ई रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव होछ ना देखबा रिफ्लेक्सिव तले m into n is divisible by 2 जदि हमें m कथा नबा निज गुटी गुटी नंबर नबा सपोज m is equal to हमें 3 नबा तले 3 3 भीतर रिलेशन हबो 3 into 3 कोन हबो m into n 3 into 3 कोन व्हाट इज 9 तो 9 कोन डिविजिबल बाय 2 होछ की हो नै तले लेट m is equal to 3 तो here m into m that is equal to 3 into 3 and 9 which is not divisible by 2 so it mm does not belongs to r. Next about the symmetric कथा consider करिया symmetric if mn is divisible by mn is divisible by 2 so nm also divisible by 2 होबा ना नहीं सपोज हमें यदि m नबा 2 n नबा 3 2 into 3 6 divisible by 2 हला तले 3 into 2 also कता हो divisible by 2 होबा ना नहीं so it is satisfied so it is symmetric but in case of transitive मोटे एग्जांपल नहीं प्रूव करिया तुम एग्जांपल नहीं प्रूव करि पाइ हमें जदि एग्जांपल नबा सपोज तीनटा पेयर नंबर अछि गोटे नेली 3 2 belongs to r okay and 2 5 belongs to r a to b b to c 3 2 2 5 तो रिलेशन कोन 3 5 आसी अछि तो 3 5 कोन belongs to r हबो काई हबनी does not belongs to r why 3 into 5 what is 15 15 कोन 2 रा डिविजन देखो 3 into 2 6 divisible by r माने 2 रा डिविजन होची ठीक अछि 2 into 5 divisible by 2 also ठीक अछि कि 3 into 5 so divisible by 2 हो नाही so it is not transitive clear हला ना so it is reflexive हो नाही केवल सिमेट्रिक होची और ट्रांजिटिव मध्ये हो नाही वर्तमान हमें congruence modulo relation और integer पढ़िया तो what is congruence modulo relation और integer let ab is an integer so ab belongs to z and mb any positive integer ताले कोन आला ab any integer and m is any integer then a is congruent to b modulo m which is written as a congruent b modulo m if a difference b is divisible by m that is a difference b is equal to mk for k in scalar that is equal to a is equal to what is b plus mk. For example we'll write here 22 congruence 1 modulo 7 तो माने हो कोन 21 minus 1 which what is value sorry 22 minus 1 that is 21 which is divisible by 7 which is divisible by 7 so in this place we can write also 3 also no problem. Another problem suppose that is minus 11 congruence
minus plus 1 modulo 3. What will be? Minus 11 minus 1 is equal to what is minus 12, which is divisible by 3. ओके बुझिगला पूरा कांग्रेस मॉडल विषय बर्तमान प्रूफ कर देखिबा तोर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल ले तोर 6 एग्जांपल 6 प्रूफ दैट कांग्रेस मॉडल बुक रे क्वेश्चन अछि देखो बुक रे क्वेश्चन एग्जांपल 6 पेज नंबर 5 show the relation on Z given by AB, that is A congruence B modulo 3 is an equivalence relation. Is an equivalence relation. That means A difference B congruence modulo 3 is divisible by 3. पूरा बुझीगला ए बी रो डिफरेंस ता 3 द्वारा विभाज्य हम एटा करके देखिबार अछि एनी हाउ. सो प्रथमे हम देखिबा रिफ्लेक्सिव तो given in this case that it belongs to Z, so A belongs to Z I consider. So A difference A is equal to what is 0, which is divisible by 3. ताले हम प्रूफ हो गला कोन A belongs to R, so it is reflexive. Clear? Then symmetric कैसे कोन हो ना let A B belongs to Z, तो given A B belongs to R, that is only A difference B is equal to 3K. Kahi lagli 3K? 3 or multiple. It may be 3, 6, 0, 3, 6, 12, 15, etc. So 3K. That is equal to, if you write here B difference A, then it will be minus 3K, which is also divisible by 3. So I can write here BA belongs to R. So monetally AB belongs to R. Proof hela BA belongs to R. So it is symmetric. तब रही ट्रांजिटिव कैसे रे कोन होला ना लेट आउट धरिबा A B C belongs to Z, तो गिवन कोन होला ना AB belongs to R and BC belongs to R. That implies A difference B is equal to 3K1, B difference C is equal to 3K2. तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नवा ऐड करिवा, ऐड 1 and 2, तो कोन पाइबा A difference B plus B difference C is equal to 3K1 plus 3K2. तो B कैंसिल हो गला, तो A difference C is equal to 3 कॉमन ले K1 plus K2. Another constant में भी 3K, so AC belongs to R असला. तो एटा कोन हला एटा रिफ्लेक्सिव हला, सिमेट्रिक हला, ट्रांजिटिव हला. ताले प्रूफ आसी गला नेक्स्ट टाइम लिखि परिबु. सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. बर्तमान हम डिस्कशन करिवा इक्विवेलेंस क्लास कोन. लेट X be an set with equivalence relation given, then equivalence class of any element X belongs to X, denoted by this symbol, the equivalence class relation, the symbol, and is defined as the equivalent class of X is equal to the Y belongs to X, Y be an element of X, that is set X, and Y related to X. One example let me pura clear है जो. Suppose one set नेली तार element अच्छी 0, 1, 2, 3, 4, 5 relation देची, आर one relation देची A B such that 2 divides A difference B. माने कोन ना A difference B रे B टा divisible हबो, दुई द्वारा विभाज्य हबो. तले find the equivalence
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो ताले जीरो रो रिलेटेड किए माने जेंति ए एक्स देतला ताले जीरो रो रिलेटेड किए हबो जदी ए डिफरेंस बी डिविजिबल हबो 2 द्वारा ताले के हबो ताले हम देखो जीरो साथे डिविजिबल के माने डिफरेंस 2 हमरा डिविजिबल बाय जीरो दैट इक्वल टू डिविजिबल बाय 2 हला माने एटी के रही परियो ना एटी देखो 2 0 गोटे आसी परियो ताले आ कोन आसी परियो 4 गोटे आसी परियो 4 2 नहीं मिले आ कोन आसीबो ताले हमें इक्विवेलेंस क्लास कोन होला यहाँ हम बाहर करिया पई गोटे इजी प्रोसेस होची लेट होची x is related to केते ना 0 तो रिलेशन कोन आसो x0 belongs to r तारे डी कंडीशन कोन देछि x - 0 is equal to केता आसे 2 के तो k रो वैल्यू 0 ही पारे 1 ही पारे 2 ही पारे केते मतलब होबा देखिया तले x जते हमें 0 k is equal to 0 नबा k is equal to 0 नबा x minus 0 is equal to that is x is equal to 2 into 0 that is equal to 0 फास्ट आसी गला त अछि हम पाखे k is equal to suppose हमें तो 1 ले तले x minus 0 is equal to केता 2 into 1 that is equal to केता 2 तले रिलेटेड केता सला 2 आसला k is equal to हमें 2 नबा तो x minus 0 is equal to केता 2 into 2 केता आसला 4 आसला अब हम पाखे अछि की 4 तापर आसी केते 6 आसी किंतु हम पाखे नाही तेनु इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इज केते हला ना 2 आउ 4 क्लियर हला केमति काढियार अछि नेक्स्ट हमें जिबा पार्टीशन ऑफ सेट बर्तन पार्टीशन ऑफ सेट x is a collection of disjoint non-empty subset of x that have x and their union तले x रे एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल होची तब डेफिनेशन होची सपोज मु कहूची a गोटे सेट और x गोटे सेट जे नाले तार एलिमेंट अछि 1 2 3 तले एठी कोन हो फर्स्ट कंडीशन कोन कहले पार्टीशन ऑफ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट तो इहार सबसेट केते परिबो ना जे हमें 1 नेली केते 2 नबा 3 नहीं परिबा तो पुनी 1 2 नहीं परिबा 2 3 नहीं परिबा 3 1 नहीं परिबा 1 2 3 नहीं परिबा किंतु हमें कोन सबसेट बाछिबा जे से माने डिसजॉइंट हेतिबे से माने मते किछि कॉमन फैक्टर नथिबो ताले मु एडी केते प्रकार वे लिखि परिबी डिसजॉइंट सेट ना देखिया ना जदी नेबी 1 नेबी एटा नहीं करी 2 नेली 3 नेली तीनटा को डिसजॉइंट किंतु आउटे कंडीशन को पार्टीशन आ पई that their union be set x ना सब गुडी को मिसै देले यूनियन कोले सेट x मार्क हवा था तो एई क्षेत्र रे एटा होची पार्टीशन काहे की ना माने डिसजॉइंट तो दैट इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन इज इक्वल टू व्हाट इज 5 नो रिलेशन बट यूनियन 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन इज इक्वल टू सेट x तो बुझियाला सामान्य डिसजॉइंट हेतिबे माने सामान्य किछि कॉमन फैक्टर न थिबो एवं समानकर यूनियन टा किंतु पूरा सेट होतो आ एक एग्जांपल एथिरे नै परिबा सपोज हमें नेलु 1 2 एंड 3 नेलु हमरा डिसजॉइंट किंतु यूनियन करले कोन आसी 1 2 3 आसी सपोज आउ रे सेमति हमें नै परिबा ओनली 1 2 3 द नो कॉमन फैक्टर डिसजॉइंट एंड आल्सो द यूनियन गोटे अछि तर यूनियन से 1 2 3 से पूरा सेट आसी तो दीज आर द पार्टीशन तो ये पार्टीशन को नहीं वर्तमान हमें किसी एक्सरसाइज रो वर्तमान प्रॉब्लम करी वर्तमान हमें पार्टीशन और इक्विवेलेंस क्लास नहीं हमें वर्तमान प्रॉब्लम करिया एक्सरसाइज रो 4 नंबर क्वेश्चन लिस्ट द मेंबर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड बाय द पार्टीशन ऑफ x रे वैल्यू जो y इक्वल 1 2 3 4 अछि and also find the equivalence class of 1 2 3 तो x गोटे सेट देखि यार एलिमेंट अछि 1 2 3 4 सो ताहले हमें बाहर करिया यार इक्विवेलेंस क्लास बाहर करिवा कहार 1 2 3 चारटा रे इक्विवेलेंस क्लास करिवा जोंथे डिसजॉइंट सेट गुडा देछि फर्स्ट बिट रे 1 1 2 3 4
एवं यह रिलेशन मध्य काढ़िया पड़ुछि फास्ट तेणु रिलेशन एटी कोन हबो ना हमें रिलेशन एटी जते हमें याको नै करियार अछि 1 जेतु एटी 1 अछि तो 1 1 1 2 and 1 3 1 4 तो 1 4 1 1 सॉरी ये अब क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 आसो केवल जेतु 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 आसो एवं 3 4 आसी पारे आ 4 3 आसी पारे तो बर्तमान देखिबा इक्विवेलेंस क्लास x1 जदि नबा कहार ना 1 हम 1 2 3 4 काढी होई तो कोन आसो एटा आसो सेट सिमिलरली 2 जते x2 नबा 2 रो इक्विवेलेंस क्लास इज कोन 2 रो आसो एवं 3 रो सेमती x3 जते काढिबा 3 रो इक्विवेलेंस कते आसो ना 3 रे 3 4 आसी पारे आओ 4 x4 जते से भी कोन आसो 3 4 भी आसो तो बुझिया बर्तमान सेकंड बिट कोन कहिछि ना 1 2 3 4 तो हम एडी कोन करिया रे रिलेशन 1 2 3 भितर रिलेशन नबा 1 1 1 2 1 3 then 2 1 2 2 2 3 then 3 1 3 2 3 3 then out of 4 टा निजे तरह 4 दैट रिलेशन बर्तमान इक्विवेलेंस क्लास कहार काढिया ना 1 रे तले 1 रे मध्ये या भितर अछि 2 रे मध्ये अछि 3 रे मध्ये अछि तो हम एका थरा लिखि परिबा 1 2 और 3 तीनटा इक्विवेलेंस क्लास का भितर अछि ना सेट 1 2 3 भितर अछि आउ का रहला 4 4 टा कोन रहला 4 टा कोन अछि 4 भितर अछि यदि 4 इक्विवेलेंस क्लास टा अछि का भितर अछि ना 4 सॉरी भितर अछि तो लास्ट बिट जेटा करिया अछि थर्ड बिट जो 1 2 3 4 तो रिलेशन केते आसीबो ना 1 2 3 4 into 1 2 3 4 माने 16 टा एलिमेंट आसीबो कोन आसीबो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 then 3 1 3 2 3 3 3 4 and 4 1 4 2 4 3 4 4 माने 16 टा एलिमेंट आसीबो एमती जे सेट रे काढिबार अछि काढी साला परे इक्विवेलेंस क्लास 1 2 3 4 कोन हो सब या भितर अछि तो एई क्षेत्र रे 1 2 3 and 4 रो इक्विवेलेंस क्लास का भितर रहबो 1 2 3 4 सेट भितर ही अछि तबे क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x x is equal to what is 1 2 3 तो ये क्षेत्र रे find the equivalence each partition of this set of the equivalence relation तो partition element रे हम रे equivalence class relation काढिया अछि x equal to 1 2 3 अछि तो हमें बर्तमान कोन केतरा एलिमेंट हेई परिले सेमती इक्विवेलेंस क्लास पांच टा हेई परिले केमिति पार्टीशन वे फर्स्ट दिन नबा कोन हो गोटे सेट नबा 1 2 3 माने या किसी कॉमन नाही यूनियन टा 1 2 3 आसु तापर एमती हेई परियो जदि हमें 1 नेले एंड 2 3 नेले ये गोटे वे रही परियो माने तापर जदि नेबा 2 नबा 1 3 हेई परियो गोटे ये गोटे वे रहो 3 नबा तार 2 1 भी हेई परियो ये गोटे वे रहो आउरे केतरा हो ना ओनली 1 2 3 केते 1 2 3 4 5 हाउ मेनी वे तो पचाची केते प्रकार वे रही परियो तले एटा हो केते पांच प्रकार वे रे हे परियो
नेक्स्ट आम जब 11 नंबर जीवा क्वेश्चन नंबर 11 होची कोन ना फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ r तो 185 belongs to that is equivalence class of r7 that is so what will that means what is that means 185 minus r is equal to 7k तले ई आर होची रिमाइंडर पार्ट तले हमें प्रथम 185 को डिवाइड करिवा 7 रे केता होची दैट इज 2 14 ये होची 45 6 42 तले 3 रिमाइंडिंग पार्ट तो आर होची 3 तले 3 माइनस करले 7 रे डिवीजन हे पाई तले एडी तले r इज इक्वल टू केता लिखले दिस केस 3 ओके वर्तमान देखिबा नेक्स्ट वीडियो करि पारियो सेमती -375 belongs to that is 11 ताले एटा सेमती करि पारिया -375 minus r is equal to 11 के from 375 to एडी हमें डिवीजन करिया 11000 तो 3 है 33 तो कहते 4 45 4 है लेके आसी दैट इज 44 चलो 1 किंतु एडी कोन माइनस रे अछि हमर तो r रा वैल्यू केते हेले एडी केते हेले सी डिवीजन होई पाइबो तो -1 रिमेनिंग पार्ट रहला ना एटा माइनस जेतो अछि सब एटा कोन -1 रिमेनिंग पला तले आउ केते हेले 11 डिवीजन रे तले 10 निश्चय जे r = 10 हे जो ते केडी लेबो केते तो -10 ये -1 तले 11 डिवीजन लेबो तले इट विल बी r = 10 सिमिलरली हमें नेक्स्ट वीडियो मध्ये करि परिबा देखो 12 नंबर कोन अछि ना 7 into 13 23 into 413 is equal to r modulo 11 तले ए क्षेत्र रे कोन अछि ना 7 into 13 7 into 13 तले ए 7 into 13 फर्स्ट उठे नबा काहे ना ये जेहेतु 11 होची 7 टा छोटो अछि दीटा पेयर नबा दैट इज इक्वल टू 91 जते नले 11 जते डिवीजन करिवा 8 रे केता होची 88 तो r = 80 केता हला तले प्रथम 91 तो कंसीडर 7 into 13 रे डिवीजन करले केता होबो तने r = 80 केता आसला 88 ले 3 आसला नेक्स्ट हमें 23 जे नबा 23 हेले डिवीजन ले केता r केता आसीबो 22 दैट इज इक्वल टू 1 आसला देन 413 विल गेट 413 11 डिवाइड करले 413 11 डिवीजन करिया 3 हेले केता होची 33 दैट इज इक्वल टू 83 तो दैट इज इक्वल टू 7 ने लेके तो होची 77 दैट इज इक्वल टू व्हाट इज इट आसीबो 6 आसीबो तला r इज इक्वल टू आसी 6 आसी तो वर्तमान टोटल टर्म रे रिमाइंडर केते हला तला 80 हला केते फर्स्ट टर हला 3 हला नेक्स्ट टर केते हला 1 हला नेक्स्ट टर केते हला 6 हला दैट इज इक्वल केते आसला 18 आसला 18 divided by 11 केता रिमाइंडर 7 तो दैट इज r इज इक्वल टू फाइनली टोटल नंबर r इज इक्वल टू केता आसला 7 आसला बुझियला नै अगेन रिपीट करूची तो 7 फर्स्ट नंबर 7 जेतु स्मॉलर अछि देन 11 में डीटा टर्म नंबर 7 and 13 91 डिवाइडेड बाय हमें 11 करलु तले केता हला 3 आसला 3 आसला परे पुनी 23 को नेले 23 जते डिवीजन करबा केतला 1 आसला 413 नेली 413 ले आसला केते 6 आसला रिमाइंडर
तो ये सब ये तीनटा हम रिमाइंडर को जब मल्टीप्लाई कले काई गोटे मल्टीप्लाई अछि मल्टीप्लाई कर 18 आसला अगेन 18 को डिविजन करिया 11 द्वारा आ से रिमाइंडर केते आर आसीबो तो इन दिस केस फर्स्ट केस रे कारण कोन हला तो r इज इक्वल टू 7 हला तो सिमिलर नेक्स्ट केस रे मते बाहर करि परियो प्रथम 6 18 नबा 18 नबा ताहार केते हला तापर 27 को 80 द्वारा करिबा 80 अदर आसीबो 3 आसीबो देन 225 को मते नबा परिसरला परे जोंटा रिजल्ट आसीबो सेटा होची r द्वारा केते डिविजन होबो तो रिमेनिंग पार्ट होची सेटा होची r मैं वर्तमान 13 नंबर करिया क्वेश्चन नंबर 13 तो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x satisfying that is 270x plus 128 congruence modulo 4 congruence to 4 modulo 7 so what is value of x least positive value of x so in this case 276 128 congruent to 4 modulo 7 so 276 can be written as 276 congruent 3 modulo 7 so we know that x also congruent to x modulo 7 we can write also by x minus x is equal to 0 so modulo 7 it can be written so it can be also after this you can write here 276x and 3x I mean to the likhi pariba modulo 7 so similarly second part achi 128 yota achi here 2 modulo 7 ita ame dita add kar daba 276 plus 128 3x plus 2 आसीबो 3x plus 2 modulo 7 अब कंपेयरिंग करिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो कंपेयरिंग कले पूरे एलएचएस पर्सन सब समान अछि तो एटे जगह केता हो ताले एटे जगह लिखि हरिया 3x plus 2 is equal to ताल लिखि परिबा 7k plus 4 k कोन नेले 7 नो मल्टीपल के भी एनी स्केलर नंबर नहीं करिया हमें तो 3x is equal to कौन लिख करिया ना 7k plus 2 लिख करिया तो x is equal to कितना लिख करिया तो 7k plus 2 by 3 तो इसे कुछ लिस्ट पॉजिटिव नंबर जे आइबो k is equal to सपोज हम होन then k is equal to 1 नबा ताले x is equal to कितना हो 7 plus 2 by 3 and 9 by 3 is equal to 3 हमारा आंसर है कहते हैं द लिस्ट पॉजिटिव नंबर वाला x is equal to 3